Hi, good evening, everyone. Yes, I was on mute. We were just waiting for a few more participants to join in, Uh, as usual. Uh, Kush will just start, we'll so start. just give me a minute. So Couple of let me minutes. introduce you. So, hello everyone, and Sure. welcome to our webinar on trading in futures. In this session, you'll get an overview of futures trading and the differences between futures, shares, and cash markets. Our speaker for today is Mr. Kush Bohra, our market expert here at Upstox. So, remember, the future is now, so let's get started. That was a nice twist. Thank you, Hina. Thank you so much. Good evening, everyone. Are baap re. Pranam, Guruji. Oh ho. Dhanyavad, dhanyavad. Uh, I know there is someone in the group. I think it's Manjunath, right? Manjunath would want me to speak in English. As you know, it will be a mixed match. थोड़ा मिक्स मैच करना पड़ेगा. नचिकेत नो वॉइस, बाकी सबको आ रही है. आई थिंक आपके एंड पे इशू हो सकता है. नचिकेत चेक करिए. आई थिंक एवरीवन एल्स कैन हियर मी. कैन यू गाइस हियर मी? जस्ट गिव मी अ क्विक हाई, यस, whatever, so that I know I am reaching you guys. Okay, great, lovely. Vatsal, okay. BK Singh, okay. Swarufuddin, okay, that's a new name. आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं शायद. Okay, lovely. Great. I see a lot of, okay, lovely. I see a lot of new names, a few old names as well. Yagnik. याग्निक, हम ऑप्शंस मार्केट के बारे में भी बात करेंगे, जस्ट नॉट इन दिस सेशन. ये पर्टिकुलरली हमने फ्यूचर्स के लिए रखा है. तो दिस इज अबाउट फ्यूचर्स ट्रेडिंग. लेकिन ऑप्शंस के लिए बहुत जल्द ही एक क्लास होगी. आई थिंक नेक्स्ट वीक और आई थिंक द वीक आफ्टर. सो इन अ कपल ऑफ वीक्स टाइम, राइट? Okay, Sonu, hi, welcome. Okay, you're new. Lovely. Bipin ji, namaste. All right. Who else? Who else? Who else is new? New. Nachike, you've been before. You've been here before, right? आपने पहले attend किया है, right? Okay. All right. नमस्ते. अच्छा, अब मुझे बताइए क्विकली, कौन कौन नए हैं, कौन कौन ये सेशन पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, किन्होंने कोई भी सेशन नहीं अटेंड किया, लाइक नेवर, कभी भी कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया है, ऐसे हैं? आई वांट दिस नंबर टू गो डाउन टू 0, राइट? ओके, होगा, बहुत जल्द हो जाएगा. ओके, वाओ. ओके, ग्रेट. ओके, लेखपाल, चिराग, वेंकटेश, विवेक. अच्छा, ये आगे ने क्यों टोल्ड मी? चेरिश, दैट्स अ नाइस नेम. ओके, lovely. Harshvardhan, all right, fair enough. Imra, okay, great. So we have a lot of new participants. In fact, इसीलिए हमने ये सेशन रखा है. I don't know how many of you are aware, लेकिन हम ये सेशंस पहले कर चुके हैं. ओके, हमने एक पूरा सीरीज कंप्लीट किया है जहां पे हमने ऑप्शंस के बारे में बात की है इन थरो डिटेल. ओके, तो हमने कॉल ऑप्शंस को अलग से ब्रेक डाउन किया है, पुट ऑप्शंस को ब्रेक डाउन किया है, स्ट्रेटजीज, ग्रीक, ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो. इनफैक्ट इवन ट्रेडिंग के लिए क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या टॉप मिस्टेक्स होती हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं. ओके, but we realized that there are a lot of new members, okay, who join, right, regularly, and there are a lot of members who've not seen this webinar before, or who've not been a part of this before. And everything said and done, derivatives abhi bhi India mein relatively naya concept hai, and I mean relatively, right? I mean about what, a decade old, a little over a decade old, right? तो compared to the stock market life अभी भी जरा नया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दैट नीड्स टू हैपन. तो इसीलिए ये वेबिनार सीरीज हम रख रहे हैं अपस्टॉक्स की तरफ से. हम चाहते हैं कि आप सीखें, समझें और फिर ट्रेड और ट्रांजैक्ट करें. इनफैक्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ यू गाइस, आई मीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू गाइस आर एपीज, करेक्ट? आई थिंक कि आपका भी ओनस है कि आप इसे अपने क्लाइंट्स तक ले जाएं, ये नॉलेज उनके साथ शेयर करें, करेक्ट? And that's how the knowledge grows, correct? The more you share, the more it grows. Lovely. So on that note, we will begin soon. I also want to know, are there any uh, old participants, old, and I know, repeat participants, let me call them, or as I usually call them, usual suspects. कौन है बताइए? निशांत, okay. Vivek, of course, okay. Sandeep, Saurav, all right.
Jagdish Vatsal, yes, I remember. Okay, Manjunath, all right, I remember. Dayanand, yes, Dayanand, I think आपने कुछ सेशंस ही अटेंड किए हैं, नॉट ऑल, राइट. शुभम, इंसिडेंटली हमारे पास 3 या 4 शुभम हुआ करते थे, करेक्ट, इन वन सेशन. आई डोंट नो अगर आप उसमें थे कि नहीं. बीके सिंह, ऑफ कोर्स. विठल. Realme 3i, Saurav. Ah, okay, fair enough. Okay, first time. Okay, all right, yep, got it, Saurav. Lovely, great, great. So अब मुझे ये बताइए कि आप में से कितनों को फ्यूचर्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. How many of you have no clue about what futures are? क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रांजैक्ट करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता, हेड्स एंड टेल्स नहीं पता. ओके, आई नो ओनली कैश, नो आइडिया अबाउट फ्यूचर, नो क्लू, नो आइडिया. ओके, ओके, एनीवन एल्स? व्हाट इज हेजिंग? आएगा. ओके, नो आइडिया. ग्रेट, लवली. सो आई थिंक आप लोग एब्सोल्युटली सही जगह पे आए हैं. हमारी टारगेटिंग इस बार शायद बहुत ही सही हुई है, करेक्ट. Or the word has spread about how good and how interesting these sessions are, right? I'm just using this opportunity to build some energy up, right? And as you've already guessed, अगर आपने ये sessions पहले नहीं attend किए हैं, so as you've already guessed, भले ही सिर्फ मुझे परमिशन है स्पीक करने की, ऑफ कोर्स along with हिना and other panelists, आप लोगों को मैं शांति से तो नहीं बैठने दूंगा, ठीक है. As you've already realized कि बहुत engagement होगा, बहुत interaction होगा, and I always say this, the more you engage, the more you learn, okay? तो मैं बहुत से questions पूछूंगा, जिनके आप answers type करिए, correct? आपके कोई questions होंगे तो उन्हें type करिए. If it's meant for that particular section or that topic, I will obviously answer that then and there. If not, then I will take it, maybe towards the end of the session, correct? Lovely. So ग्रेट. हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. बहुत लोगों ने ऑलरेडी पूछा है कि पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग है कि नहीं. अब ऑनेस्टली ये बहुत रेगुलर फीचर हो गया है, इसलिए ही ना मुझे लगता है वो कॉपी पेस्ट करके एक जगह पे रेडी रखती हैं, और जैसे ही कोई पूछता है वो मैसेज तुरंत आ जाता है जैसा अभी आया है. ओके, तो पुराने सेशंस की रिकॉर्डिंग्स हैं, इस सेशन की भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी. आई हैव अ फीलिंग दैट यू विल प्रोबब्ली गेट दैट एट द नेक्स्ट सेशन. ओके, वेयर why where in January you need AC? Very good observation. Okay, actually it's not about January, it's about where I'm located in my house. I'm in a corner, right, with that white background and everything. तो ये corner में थोड़ा सा heat हो जाता है, and as you can see so much energy bursting, right? तो जरूरत पड़ती है, otherwise it is super chill. I don't know आप लोग कौन से part में हैं. I am in Mumbai, but even in Mumbai it is cold. It is like genuinely cold, करेक्ट. अब वो नॉर्थ और दिल्ली वाले मत बोलना सर, आपको क्या पता विंटर क्या होती है, ठीक है. हाँ, ओके, सॉरी, जम्मू वाले बोल सकते हैं. ओके, ग्रेट, लवली, लवली. ओके, नाइस. चलिए शुरू करते हैं. आप में से बहुत जनों को फ्यूचर्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है. तो एक मिनट रुकिए. शैल आई शेयर दीज लिंक्स विथ माय फ्रेंड्स और इज इट लीगल? ये किसने पूछा है? महेश. महेश, ये जो सेशंस हैं ये अपस्टॉक्स के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए है. तो अगर आपके फ्रेंड्स पार्टनर्स हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ये मेल मैसेज नोटिफिकेशन गया होगा. अभी हम नॉन पार्टनर्स के लिए ये सेशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. वील डू इट इन द फ्यूचर, बट अभी नहीं किया है. सो जस्ट फॉर नाउ शेयर इट ओनली विद द पार्टनर कम्युनिटी, अगर आपके फ्रेंड्स वहां है तो. ठीक है सर, वो वाला हाउ टू यूज द स्टॉप लॉस वाला वेबिनार आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एंगेजिंग था, आपको मजा आएगा एंड बहुत जरूरी है. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच महेश. We will conduct this session again. I mean, I can't put a date to it right now, लेकिन अब हम इसको वापस एज अ सीरीज शुरू कर रहे हैं. ओके ओके ओके, ग्रेट, थैंक यू संदीप. ठीक है, चलिए, lovely. Let's get started. Okay, let's get started. We have quorum. We have more than our quorum. Correct? Okay, चलिए. अब आप लोग कैश में ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे ये समझना है कि कितने समय से, for how much time have you guys been trading in the equity markets? मतलब equity market में आप कब से ट्रेड कर रहे हो? Is it been a few months? Is it been a few years? Just to get an understanding.
3 years, 4 years, 1, 2, okay, okay. 16 months, 3 years, okay. 2 months, okay, all right, okay. About a year, okay, all right. सर फ्यूचर का पूरा सीरीज नहीं आएगा, वो क्वेश्चन मिस हो गया मेरा, आई एम सॉरी. 9 months, 3 months, 3 years. Okay, not now. Okay, so you've been trading. अच्छा, zero experience. So आपको कैश का भी एक्सपीरियंस नहीं है. Sabarna was that? Okay. 3 years. Okay. जब से ब्लैक एंड व्हाइट में था. Wow. Okay. Oh, 21 years. Wow, amazing. Congratulations. 2 decades, more than 2 decades you've completed in the market. Lovely. Almost 4 years. Great. So I get a sense anywhere from about a few months to what I've seen, the biggest number is about a decade, correct? I mean, about 2 decades, I'm sorry. Correct? Lovely. तो इतने समय से आप मार्केट्स में ट्रेड करते आ रहे हैं, ठीक है. अब आप अगर ज्यादातर कैश में ट्रेड करते हैं, करेक्ट, तो आपको इंट्राडे प्रोडक्ट्स के बारे में पता होगा, जहां पे आपको लेवरेज मिलता है, जहां मार्जिन मिलती है. करेक्ट. वाओ, कांग्रेचुलेशंस. ग्रेट. जहां आपको लेवरेज मिलता है, जहां मार्जिन मिलती है, करेक्ट. बट एक बार के लिए, जस्ट फॉर नाउ, जस्ट फॉर डिस्कशन से, उस इंट्राडे वाले जो लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं, मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम साइड पर रखते हैं. वी जस्ट कीप देम असाइड. ओके. अब हम शुरू कर रहे हैं डेरिवेटिव्स. अब डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? ओके. व्हाट आर डेरिवेटिव्स? अब अगर मैं इसको एक लेमैन क्वेश्चन, एक लेमैन लैंग्वेज में पूछूं, ओके, कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, कैन समवन आंसर दिस? एंड ओके, लिसन, आई डोंट वांट अ टेक्निकल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन. मैं बस जनरली समझना चाहता हूं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है डेरिवेटिव. I will mix, as you can see, between Hindi and English, right? So, yeah, that is something you'll have to excuse me, but I'll try my level best to mix both the languages, right? There have been times when you could practically make these 2 sessions. If you recorded them separately, you could make these 2 sessions. Vivekanand, it has to be a mix, right? Because a lot of participants are predominantly Hindi speaking only. So that's why I am mixing Hindi and English both for the ones who speak English only, correct? Okay. Instruments to have trade right value, demand value derived by underlying contract between 2 people, English comfortable. Okay. This is like insurance, जिसकी value derived होती है. Lovely. Example, money. Actually, you're right in a way. Fair enough. For example, Apple is the underlying for Apple. Oh, brilliant. Okay, this is a good one. Betting on perception किसी और चीज की. Wow. Okay, great. So now एक understanding है हमें कि derivative क्या होता है. Butter is a derivative of milk. अच्छा, ओके. आप में से कितनों ने Derivatives 101 सीरीज देखी है अपस्टॉक्स के YouTube चैनल पे? नहीं? Okay. You should go and watch that. Okay, you have. Okay, fair enough. Okay, a lot of you have, a lot of you haven't. Okay. YouTube पे Derivatives 101 सीरीज है, आप वहां जाके भी ये वीडियोस देख सकते हैं. उसमें हमने सिमिलर एग्जांपल्स यूज किए हैं जो यहाँ पे शेयर हो रहे हैं. ओके. आप लोग अपस्टॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब्ड हो के नहीं एटलीस्ट. ओके. आप इतने सारे अपडेट्स, इतना सारा एजुकेशन क्वांटिटी, एजुकेशन मटेरियल आ रहा है आपके पास. ओके. तो हाँ, ओके, लवली, ग्रेट. अगर नहीं हो तो कर लीजिए, ठीक है. सो देखिए, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? समथिंग दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू आउट ऑफ समथिंग एल्स. मतलब किसी चीज की वैल्यू किसी और चीज के ऊपर बेस्ड है. अब इसका ना एक सिंपल सा एग्जांपल है, ओके, कि अगर हम बात करें लेट्स से मिल्क एंड कर्ड, दूध और दही की, ठीक है. अगर हम बात करें, थैंक यू विवेक, अगर हम बात करें दूध और दही की, अगर मार्केट में, एंड दिस इज अ क्वेश्चन, ओके, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अगर मार्केट में दूध का दाम ऊपर जाएगा, ओके, तो दही के दाम का क्या होगा? वेयर विल द प्राइस ऑफ द कर्ड गो? ऑब्वियसली, राइट? ऑब्वियसली, राइट? इट विल गो हायर, करेक्ट? इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि मिल्क से बनता है दही.
अब अगर मिल्क ही महंगा हो गया, सो दही विल ऑल्सो बिकम एक्सपेंसिव, करेक्ट, लवली। एंड लॉजिकली अगर मार्केट में मिल्क का दाम गिर गया, तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि दही का दाम भी गिरेगा, बराबर। तो ये होता है डेरिवेटिव, कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू किसी और पे बेस्ड है, या किसी ने जैसा लिखा एप्पल जूस इज एन डेरिवेटिव ऑफ एप्पल, करेक्ट, गुड एग्जांपल। तो ये होते हैं डेरिवेटिव्स। अब इनका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है? व्हाट डज दिस हैव टू डू विद स्टॉक मार्केट्स? ओके, अब तक आप लोगों ने ट्रेड किया होगा इन शेयर्स, करेक्ट, अज्यूमिंग कि आप डेरिवेटिव्स में अब तक नहीं ट्रेड करते आए हैं या बहुत कम ट्रेड किया होगा, बराबर। तो अब तक आप ट्रेड करते आए हैं शेयर्स में, राइट, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, टीसीएस, करेक्ट, जो भी शेयर्स में आप ट्रेड करते हो, बट दे आर प्रिडोमिनेंटली शेयर्स, राइट। अब जो हम बात कर रहे हैं वो है इनके कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने की, जिनकी वैल्यू इनके शेयर्स पर बेस्ड है, ठीक है। लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करने से आप कंपनी के ओनर नहीं बनते, आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं बाय कर रहे हो, लेकिन कंपनी का जो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। ये होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब बिफोर वी गेट इनटू व्हाट इज फ्यूचर्स, सेटलमेंट कैसे होता है, मार्जिन कैसे होते हैं, एक क्विक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि डेरिवेटिव्स आया कहां से। ओके, नाउ हियर्स अ क्वेश्चन टू एवरीवन, वेयर डिड डेरिवेटिव्स ओरिजिनेट? कहां पे डेरिवेटिव्स का ओरिजिनेशन हुआ था, कहां डेरिवेटिव्स शुरू हुए थे? एंड आई डोंट मीन कंट्री और प्लेस, आई मीन ऑक्यूपेशन। कौन से, हाँ, फ्रॉम मैथ्स, हम सबको डेरिवेटिव्स रहा है इन मैथ्स, राइट। सो हाँ, लेकिन आई मीन विच ऑक्यूपेशन, कौन से प्रोफेशन में, राइट, सबसे पहले डेरिवेटिव्स यूज हुए थे? ओके, लेट मी सी। ओके, somebody has said math, somebody has said agriculture, rice, shipping, interesting, okay, barter system, no, not really, cotton business, barley, okay, fair enough. I think you have a general sense. ज्यादातर जो बिलीफ है वो ये है कि डेरिवेटिव्स की ओरिजिनेशन हुई थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, नाउ आई नो समटाइम्स जब मैं ये कहता हूं तो लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स वंडर कि एग्रीकल्चर में कैसे। ओके, एक्चुअली बहुत सिंपल है अगर हम सोचें तो। देखो, फार्मर जो होता है वो सारी मेहनत आज करता है, ठीक है, जैसे प्लाविंग द फील्ड, सोइंग द सीड, इरिगेशन, वाटर, एवरीथिंग। लेकिन उसकी फसल जो है ना वो आज से 3 महीने 6 महीने बाद आएगी, बराबर। अब उसकी सारी कमाई जो है वो इसी फसल पे निर्भर है, करेक्ट। अब जब तक फसल आएगी तब तक मार्केट में क्या दाम होगा, कैसी फसल आएगी, ये सारे कॉम्बिनेशंस ना बहुत ही ट्रिकी हैं। तो उससे जो उसकी इनकम है ना वो अनसर्टन हो जाती है। अब उस इनकम को सर्टन करने के लिए फार्मर और ट्रेडर, ठीक है, एक एग्रीमेंट करते हैं कि जब ये फसल आएगी तो हम एक्स रेट पे, ओके, ये फसल एक्सचेंज करेंगे। मतलब मैं आपको ये जो भी मेरा फसल है, लेट्स से व्हीट और राइस, करेक्ट, आपको इस प्राइस पे बेचूंगा। अब इससे क्या होता है, फार्मर को एक प्राइस की सर्टेनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है फार्मर के लिए। ट्रेडर के लिए इसमें कोई एडवांटेज है? एज अ ट्रेडर, इज देयर एन एडवांटेज इन दिस? ट्रेडर क्यों ऐसा प्राइस लॉक करना चाहेगा? नहीं, ट्रेडर के लिए नहीं है। आर यू श्योर? सोचो सोचो, अगर आप ट्रेडर हो तो क्या आप ऐसा डील लॉक करना चाहोगे? इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? So that he can get the material at lower price. Okay, okay. If he feels the price will go, trader is a risk taker. Okay, fair enough. अगर भाव बढ़ गया तो trader price lock. Okay, perfect, perfect, exactly. So actually अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रेडर और फार्मर जो है ना, दोनों ही इस एग्रीमेंट में एक ही कारण से आ रहे हैं, ठीक है। दोनों एक ही रीजन से ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं। कैन यू गेस, लाइक इन वन वर्ड, एक सेंटेंस में, कि वो क्या कारण है? दोनों को फियर, यू कैन से सो, अनसर्टेनिटी, अवॉइड ह्यूज लॉस, हाई इनकम, प्राइस, व्हाट इज द लास्ट वर्ड? आई डोंट नो।
Alright, market uncertainty, certainty of good, oh surety, okay fair enough. Okay, fair enough. Again एक सेम थीम इमर्ज हो रही है, ठीक है, which is certainty, right? अगर हम ये डील नहीं करते हैं एज अ फार्मर एंड अ ट्रेडर, अगर हम ये डील नहीं करते हैं तो क्या होगा? फार्मर को नहीं पता कि भाई 3 महीने 6 महीने बाद क्या प्राइस पे सौदा होगा। ट्रेडर जो है, देखो ट्रेडर अल्टीमेटली ट्रेडर है, वो अपने कंजम्पशन के लिए नहीं ले रहा है, वो आगे बेचने वाला है। अब वो हो सकता है वो होलसेल ट्रेडर हो या वो आटे की चक्की चलाता हो, करेक्ट? तो उसके लिए ये इनपुट है, करेक्ट? तो उसे भी ये समझना है कि भाई मेरे लिए क्या प्राइस होने वाला है फॉर दिस कमोडिटी, ताकि मैं मेरे आगे का जो कैलकुलेशन है वो कर सकूं। तो दोनों पार्टीज को चाहिए सर्टेनिटी, दोनों पार्टीज को चाहिए एक सर्टेनिटी कि प्राइस हमारा लॉक हो जाए, प्राइस हमारा फ्रीज हो जाए, ओके? तब हम बाकी के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन बोथ ऑफ देम कम इनटू अ एग्रीमेंट, ओके? और इस तरह से इजाद हुआ था डेरिवेटिव्स का, ओके, इन एग्रीकल्चर एज अ सेक्टर। So far so good, everyone with me, right? Simple, logical, okay? Taking it step by step. Hi, Matthews. I think you've also attended before, right? Great. Oh, you haven't? Uh-huh. Okay. Lovely. So, हाँ, so idea है कि हम हमारा जो प्राइस है उसे लॉक कर रहे हैं, हमारी सर्टेनिटी जो है उसे लॉक कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी से दूर हो रहे हैं। देखो मार्केट्स को भी ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। एज अ ट्रेडर द डाइकोटमी जो हम कहते हैं, जो यू नो जो ऑपोजिट चीजें जो है वो ये है कि मार्केट थ्राइव्स ऑन अनसर्टेनिटी, मतलब मार्केट अनसर्टन है इसीलिए लोग उसमें ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। बट द वन थिंग दैट द मार्केट डज नॉट लाइक इज अनसर्टेनिटी, करेक्ट? अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी है, या कोई गवर्नमेंट इश्यूज आने वाले हैं या कोई कंपनी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उन्हें क्लैरिटी चाहिए। सो यू सी हाउ द सेम थिंग वर्क्स इन टू डिफरेंट वेज, राइट? ओके, दैट वाज समथिंग, जस्ट सम ब्रॉड ज्ञान अबाउट हाउ मार्केट्स टेंड टू approach the whole idea of certainty, correct? Great. So both the concept or both the parties want certainty, उन्हें एक certainty चाहिए। ये जो हमने अभी एग्रीमेंट देखा ना बिटवीन द फार्मर एंड द ट्रेडर, ओके, ये है एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव्स ट्रेड, ठीक है? कैन समवन गेस किस टाइप का डेरिवेटिव ट्रेड है ये किस तरीके का एग्रीमेंट किया है हमने अभी, या बिटवीन द फार्मर एंड द ट्रेडर? इट इज नॉट अ फ्यूचर्स ट्रेड, इट इज नॉट अ फ्यूचर्स ट्रेड। यस मोहम्मद, यू आर राइट, इट इज अ फॉरवर्ड्स ट्रेड, ओके? सो अभी जो हमने एक ट्रांजैक्शन देखा, ये एक्चुअली है एक फॉरवर्ड्स ट्रांजैक्शन, ठीक है? काफी सिमिलर होता है फ्यूचर्स को, लेकिन कुछ कुछ पैरामीटर्स पे अलग भी होता है, ठीक है? अब इसमें क्या हुआ देखो, दो पार्टीज एक साथ आई, ओके, यस, एक साथ आई और इन्होंने अग्री किया टू गेट इनटू अ ट्रेड और टू गेट इनटू एन अग्रीमेंट, ठीक है? बोथ ऑफ देम अग्रीड कि आज से 3 महीने बाद हम एक्स प्राइस पे एक्स क्वांटिटी, लेट्स से व्हीट, ओके, एक्सचेंज करेंगे। तो ये हो गया एक एग्रीमेंट। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, लेट्स डिस्कस कि इस फॉरवर्ड्स एग्रीमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा ट्रेड है, करेक्ट? आई एम श्योर हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सोच सकते हैं, करेक्ट? तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? कस्टमाइज्ड, वेरी नाइस, करेक्ट, दोनों पार्टीज अपने हिसाब से इसे डिजाइन या डेवलप कर सकती हैं, वेरी गुड। और कोई एडवांटेज इस ट्रांजैक्शन का? सबसे पहला तो है देखो सर्टेनिटी, करेक्ट, कि भाई हमें एक एग्रीमेंट मिल गया, बराबर, ओके, स्टेबल, श्योरिटी, ओके, फेयर एनफ, ऑलराइट, क्लैरिटी, ठीक है, कस्टमाइजेशन, फेयर एनफ, ये ब्रॉडली एडवांटेजेस हैं, ठीक है? विपिन जी, अब हम आएंगे इस पॉइंट पे, करेक्ट, ओवर द काउंटर, के भाई आप कहीं भी जाके दो जन बात करके अग्री कर सकते हैं, विल नॉट पे द होल प्राइस, फेयर एनफ, अगेन कस्टमाइजेबल है, आप
किसी तरह से भी इसको डील कर सकते हैं, करेक्ट? या राइट, विवेकानंद, आई विश आई कुड. ओके, सो दिस इज द एडवांटेज. डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है इस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का? Volatility, cheating, default can be possible, anyone can withdraw their offer. So you see again the same idea, the same theme is emerging, जिसे हम कहते हैं default risk या हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क. ओके, व्हाट्स अ काउंटर पार्टी रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क जिसकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, जैसा आप लोग यहां मेंशन कर रहे हो, अगर प्राइस बहुत ज्यादा मूव होता है, या तो बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे, करेक्ट, तो आइदर पार्टीज को एक इंसेंटिव है ना टू नॉट अग्री टू दिस ट्रेड, करेक्ट? maybe the contract cannot continue, correct? Same idea, same theme. Okay, what do we mean by this? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम अग्री करते हैं कि हम आने वाले 3 महीनों में 30 रुपीज पे, ओके, व्हीट एक्सचेंज करेंगे बिटवीन द फार्मर एंड द ट्रेडर, ठीक है, एंड प्राइस बढ़ के हो जाता है 33, करेक्ट? प्राइस बढ़ के हो जाता है 33. Does the farmer have an incentive to not sell it to the trader as per the agreement and sell it in the open market? क्या वो फार्मर कह सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं ना ट्रेडर को नहीं बेचता हूं 30 रुपए में, मुझे मार्केट में 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, विच इज अ गुड 10%. तो क्या वो ओपन मार्केट में बेचना प्रेफर करेगा? Okay, so a lot of you guys are saying yes, some of you are saying no. Okay, I want to understand, why will the person not sell, or why will the farmer not sell in the open market? Okay, okay, so आप कह रहे हैं he can't sell because of the contract. लेकिन okay, did you, okay, listen to this carefully, it's not a contract ना, ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है जो दो जनों ने किया है. हाँ, अगर वो डिफॉल्ट करता है तो द ट्रेडर कैन कम आर्ग्यू, यू नो, फाइट, एंड नॉट इन लाइक फाइट बट या यू नो वर्बल फाइट, बट वो बोल सकते हैं कि भाई आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, क्यों नहीं आप डिलीवर कर रहे हो? लेकिन ये एनफोर्सेबल नहीं है बिकॉज इट्स अ वर्बल एग्रीमेंट राइट नाउ. ओके, अब इसी सिचुएशन को दूसरी तरीके से देखते हैं. अगर प्राइस 30 से गिर के 27 हो जाता है, इफ द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 30 टू 27, क्या ट्रेडर के पास एक मोटिव है टू नॉट बाय फ्रॉम द फार्मर एंड बाय फ्रॉम द ओपन मार्केट? करेक्ट, ट्रेडर के पास एक इंसेंटिव है टू बाय फ्रॉम द ओपन मार्केट. क्यों? क्योंकि वहां पे उसको 10% लेस रेट पे मिल रहा है, करेक्ट? एंड सेम रीजन कि अगर मुझे यू नो ये एनफोर्सेबल नहीं है स्ट्रिक्टली, तो मैं क्यों 10% ज्यादा देके बाय करूं? व्हाट इफ ही इज बाइंग लाइक 10 लाख क्वांटिटी और 1 लाख क्वांटिटी, जस्ट हाइपोथेटिकल, करेक्ट? तो द अमाउंट ऑल्सो बिकम्स हाई, करेक्ट? तो इसलिए he will have an incentive to not buy from the from the farmer and buy from the open market. इसे हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क. और ये जो है ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है फॉरवर्ड्स का. ओके, एंड एज यू कैन सी, ये सिर्फ दो पार्टीज अपने बीच में कर रही हैं, कोई तीसरी पार्टी है नहीं एज अ गारंटर टू मेक श्योर कि आइदर पार्टी यू नो डज नॉट डिफॉल्ट, नाइदर पार्टी डिफॉल्ट्स, करेक्ट? तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फॉरवर्ड्स का. इसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए या मिटाने के लिए इंट्रोडक्शन हुआ किसका? किसका इंट्रोडक्शन हुआ? नो, व्हाट्स द टॉपिक फॉर द डे? फ्यूचर्स, एब्सोल्युटली. इसीलिए इंट्रोडक्शन हुआ फ्यूचर्स का. लवली, राइट? नाउ let's have a quick look about what are derivatives and what kind of derivatives are you know are we going to discuss, या जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ठीक है,
तो एज यू कैन सी, derivatives are financial instruments जिनकी value is derived out of an underlying. Now that underlying can be a stock, can be an index like Nifty, Bank Nifty, can be a commodity. करेक्ट, कमोडिटी पे भी ट्रेडिंग के लिए डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं. करेक्ट, हाँ जी. फिर फॉरवर्ड्स. अब देखो लार्जली ना 3 टाइप के होते हैं. एक्चुअली एक और होता है स्वैप्स, बट वो हम एक्सचेंज ट्रेडेड, हमारे यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड अभी नहीं है, तो हम वो नहीं डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक है फॉरवर्ड्स, करेक्ट, जिसके बारे में हमने अभी बात किया. देन देयर इज फ्यूचर्स, जिसपे हम ट्रेड करने वाले हैं, एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट अ लॉट मोर. एंड देन देयर आर ऑप्शंस, जिसके बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे. ओके. हाँ जी सौरभ जी, मैसेज अंडरस्टूड. कोई पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो जो नहीं समझा, तो आप डाल दीजिए, तो हम उसके बारे में थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं. करेक्ट. हाँ, सो फॉरवर्ड्स इज समथिंग दैट नॉट विल नॉट बी डीलिंग इन. फॉरवर्ड्स एक बेसिस बना था फ्यूचर्स के लिए, तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड फ्यूचर्स क्यों और कैसे आए. बराबर. अब हम बात करेंगे फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं उनका. करेक्ट. जैसा हमने देखा, फॉरवर्ड्स में एडवांटेजेस ये हैं कि एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, 2 जने कभी भी साथ में आके बात कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं. एक एडवांटेज है कस्टमाइजेबल है. करेक्ट, हाईली कस्टमाइजेबल. आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इस डील को कस्टमाइज कर सकते हैं. अगर आप कहें नहीं मुझे 101 किलो एक्सचेंज करना है, अगर आप ट्रेडर हो और फार्मर एग्री करता है तो आप वो भी कर सकते हो. अगर आप कहते हो नहीं मुझे फ्राइडे को रात को 10 बजे चाहिए, इफ बोथ द पार्टीज अग्री, जहां तक दोनों पार्टीज अग्री करती हैं वहां तक किसी भी टर्म्स पे ये एग्रीमेंट हो सकता है. सो इट इज हाईली कस्टमाइजेबल. लेकिन इश्यू क्या है? सबसे बड़ा इश्यू है डिफॉल्ट रिस्क. ओके, व्हाट डिफॉल्ट रिस्क? जैसा हमने देखा, कोई भी पार्टी डिफॉल्ट कर सकती है. आपने एक सर्टेन टर्म पे अग्री किया है, देयर इज अ चांस कि कोई भी पार्टी मना कर सकती है अगर प्राइस बहुत ऊपर या ज्यादा नीचे फ्लक्चुएट होता है तो. बराबर. देन फिर सेकेंड पॉइंट इज एक्सट्रीमली इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स. इसका क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय लिक्विड और इलिक्विड? एनी आइडिया? What is liquidity or illiquid? Absolutely. Liquid means कितना इजीली आप उसमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. बराबर. कितने इजीली आप उसमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आप जानते हो बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें आप इजीली बाय सेल कर सकते हो. करेक्ट. कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने एक डिसेंट क्वांटिटी बाय कर ली तो आपको शायद सेल करने ना मिले. करेक्ट. या अगर आप सेल करने जाओगे तो हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए. ओके. तो ये होते हैं इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स. इसका एक टिपिकल एग्जांपल क्या है? होम. हम जिसकी बात करते हैं, होम या रियल एस्टेट ट्रेडिंग की, शेयर्स आर फेयरली लिक्विड. आप चाहो तो बाय सेल कर सकते हो. बराबर. इजीली शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं. लेकिन अगर आप कोई घर बाय या सेल करना चाहते हो तो वो हो जाता है इलिक्विड. व्हाई? बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू फाइंड अ बायर, गेट थ्रू द होल ट्रांजैक्शन, सेल. करेक्ट. तो ये है इलिक्विड असेट. करेक्ट. उसी तरह से फॉरवर्ड्स हो जाते हैं एक इलिक्विड असेट टू ट्रेड और ट्रांजैक्ट इन. ऑल राइट. सो जिस तरह से हम देख रहे थे कि फ्यूचर्स में एक एडवांटेज है ओवर फॉरवर्ड्स, और वो है लिक्विडिटी और वो है गारंटी. गारंटी ऑफ व्हाट? गारंटी है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनर होगा. ओके. इसका क्या मतलब है? अगर मान लीजिए जैसे हमने डिस्कस किया बिटवीन अ फार्मर एंड अ ट्रेडर, अगर आप प्राइस ऊपर या नीचे होने की वजह से कोई भी एक पार्टी मना करती है कि मैं ये ट्रांजैक्शन नहीं ऑनर करूंगा या फुलफिल करूंगा, तो एक्सचेंज विल एंश्योर
कि आपका ट्रेड सेटल हो और आपको जो प्रॉफिट मिलना है वो आपको मिले। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट व्हाट आर फ्यूचर्स इन टर्म्स ऑफ अ टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, futures are a standardized legal agreement, okay, to buy or sell something at a predetermined price, okay, at a pre-specified time in the future. ये टेक्निकल डेफिनेशन है। ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज स्टैंडर्डाइज्ड लीगल एग्रीमेंट। आपको ये समझना जरूरी है कि जो पहले हम डिस्कस कर रहे थे वो था एक बायलैटरल एग्रीमेंट। कोई भी दो पार्टी अपने बीच में एग्रीमेंट करके डिसाइड कर सकती है कि उन्हें बाय करना है, सेल करना है, क्या ट्रांजैक्शन रखना है, लेकिन उसे गवर्न करने के लिए, उसे इंश्योर करने के लिए कोई नहीं था। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड लीगल एग्रीमेंट हो गया फ्यूचर्स। अब देयर इज अ लीगल क्लॉज या अ लीगल एग्रीमेंट जो एनफोर्स करेगा कि आप जो अपना बाइंग सेलिंग किया है आपने उसे ऑनर करें। करेक्ट, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है बिटवीन फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स टू स्टार्ट विथ। राइट नाउ देयर आर अ सर्टेन फीचर्स अबाउट फ्यूचर्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। पहला, as the name suggests, okay, futures are a standardized legal agreement. अगर हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी पार्टी, ओके, अगर कोई भी पार्टी अपने कमिटमेंट को ऑनर नहीं कर रही है तो उसे अगर हमें हटाना है या उसे हमें निगेट करना है तो हमें एक थर्ड पार्टी का इंट्रोडक्शन करना होगा। एंड विच इज दिस थर्ड पार्टी दैट कम्स इनटू पिक्चर? द ब्रोकर, SEBI? No. Yes. Correct. 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 Exchange, right? जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये बनते हैं गारंटर्स। दीज गाइस बिकम द थर्ड पार्टी, ओके, दैट इंश्योर्स कि आपका जो ट्रेड है, ओके, वो फुलफिल हो, आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो सही तरह से सेटल हो। ओके, नाउ फ्यूचर्स में एक्सचेंजेस बिकम अ गारंटर। दे एक्ट एज दैट पार्टी व्हिच विल इंश्योर दैट योर कमिटमेंट्स आर ऑनर्ड इवन इफ द अदर पार्टी डिफॉल्ट्स। ओके, उसके भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग डाल दिए गए हैं ऑन द एक्सचेंजेस। ओके, और कैलकाटा एक्सचेंज, राइट, इज इट स्टिल ऑन? बिकॉज आई थिंक बहुत सारे एक्सचेंजेस लास्ट 1-2 साल में शट हुए हैं। सो इज द कैलकाटा एक्सचेंज स्टिल ऑन? आई नो couple of exchanges that got shut. So that was the first feature of futures. It has a third party which acts as an intermediary, okay, or a guarantor, which is the exchange. Okay, नहीं, दो एक्सचेंजेस नहीं है, देयर आर अ लॉट मेनी एक्सचेंजेस। हम दो एक्सचेंजेस के बारे में जानते हैं बिकॉज दे आर द बिगेस्ट वंस, लेकिन बहुत सारे अलग अलग छोटे रीजनल एक्सचेंजेस भी होते हैं। दे आर कॉल्ड रीजनल एक्सचेंजेस। ओके, सो या, ओके, फेयर एनफ। अच्छा, so National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange are the two biggest exchanges, right? But then there are a lot of other small regional exchanges also. If I remember correctly, there was a point in time jahan pe I think about 21 or 22 odd exchanges the, regional exchanges mila ke. Then a lot of them got shut. Okay, correct. Yes, yeah, of course, they are all regulated and governed, no doubt about it, no doubt about it. देखिए, जहां भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे रेगुलेटर्स कम इनटू प्ले, स्पेशली जहां तक हम इस ऑर्गेनाइज्ड प्ले की बात कर रहे हैं, which is the exchanges, right? Okay, great. Functions of the exchanges predominantly to ensure liquidity and fair play in the broadest sense, to ensure कि capital सही तरह से mobilize हो जाता है, and fair play, as I said, no cheating, right? Okay. So that was the first and the most important difference between forwards and futures. ठीक है? Now these are the things that we'll get into the practical differences. Okay, पहला है लॉट साइज। ओके, अगर आप कोई भी शेयर बाय करते हैं इन द मार्केट, करेक्ट, तब आप क्या करते हो?
आप एक शेयर बाय कर सकते हो, ऑफ कोर्स इंटीजर, एट द मिनिमम यू कैन बाय 1 शेयर और यू कैन बाय एज मच शेयर्स एज यू वांट, करेक्ट। फ्यूचर्स में द डिफरेंस इज कि आपको एक मिनिमम लॉट साइज होती है, उतने ही शेयर्स बाय करने होते हैं या उसके मल्टीपल्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी एक शेयर होता, आई नो निफ्टी इज नॉट अ शेयर, लेकिन अगर निफ्टी एक शेयर होता तो आप मार्केट में एक शेयर बाय कर सकते, बराबर। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो निफ्टी का, तो उसका लॉट साइज है 50 का, यानी आपको एट एनी पॉइंट इन टाइम 50 शेयर्स एक साथ बाय करने पड़ेंगे। ओके, या आप उसके मल्टीपल्स बाय कर सकते हो, 50, 100, 150 और so on and so forth, correct? Then expiry. What do we mean by expiry? Expiry means ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन खत्म होने वाला है। ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट का एक प्री डिटरमाइंड ड्यूरेशन है। अब इंडिया में कितने महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं? कितने महीने के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम? ग्रेट, 1 2 3, 1 मंथ, 6, नहीं 3। Okay, so I see answers ranging from 1 to 6, majority being 3. Yeah, you guys are right. Correct. Thank you, BKG. That's the perfect one. Okay. 3 महीने के contracts available होते हैं. Okay. It is current month. Okay. या near month. Okay. Then middle month and then far month. So, अगर हम जनवरी में हैं, तो आपको 3 महीनों के contracts available होंगे, which is January, February and March. Okay. ये कॉन्ट्रैक्ट्स हर महीने एक्सपायर होते हैं। ओके, व्हेन डू कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर? व्हेन डू फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर? एनी आइडिया? आई नो अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस परहैप्स, करेक्ट? थर्सडे? ओके, नो, नॉट एवरी थर्सडे, इट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ। फैंटास्टिक, it is the last Thursday of every month. Okay, so then what happens is January 27th is when the January contracts will expire. So you will have January, February and March, 3 months contracts. Okay, January 27th को January का contract expire हो जाएगा, तब April का contract शुरू हो जाएगा। Then you will have February, March and April, and this is how on a rolling basis you have contracts available for 3 months. Okay, is this clear? So far so good, you guys with me? एक्सपायरी के बाद क्या होता है? प्रिंस, डू यू मीन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे सेटल होते हैं या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? इफ यू कुड जस्ट रिफाइन योर क्वेश्चन। ओके, ग्रेट, बाय द टाइम प्रिंस रिफाइंस हिज क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट है मार्जिन। अब देखो, हमने ये तो डिसाइड किया, ओके, कि contract settlement. Okay, we'll get to that. We'll discuss settlements also in detail. Yeah. Oh, is the premium of future same till expiry? Very good question. Okay, Avinash ji, is there a particular concept that you want me to explain again? आप डाल दीजिए and I will be happy to explain that again. Okay. How can we roll over? Very simple. इस महीने का sell करके अगले महीने का buy कर दीजिए. That's how you roll over a long position, right? This is only for Nikhil. For everyone else, we'll come to that also in some time. Okay, great. तो हमने ये तो देखा कि आपको कोई भी पोजीशन लेने के लिए फ्यूचर्स में एक मिनिमम लॉट साइज होता है, वो बाय करना कंपलसरी है। ठीक है, जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें, करेक्ट, तो आपको 50 शेयर्स मिनिमम एक साथ बाय करने पड़ेंगे, करेक्ट। अगर मैं निफ्टी के 50 शेयर्स बाय करता हूं आज, एंड एज आई सेड अज्यूमिंग निफ्टी इज अ शेयर, ओके, ट्रेडेबल शेयर, तो कितना पैसा लगेगा मुझे? करेक्ट, आज निफ्टी की क्लोजिंग थी कितनी? करीब 18,200, बराबर। हाँ, निफ्टी की क्लोजिंग थी आज समझो 18,200, राइट, इनटू 50। अगर मैं 50 शेयर्स निफ्टी के बाय करता हूं तो मुझे 9 लाख रुपए रखने पड़ेंगे, ओके, या देने पड़ेंगे। बट ओके, दिस इज वेयर फ्यूचर्स के बेनिफिट्स स्टार्ट टू किक इन। ओके,
फ्यूचर्स के बेनिफिट्स यहां से आने शुरू होते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, ओके, आपको रखना पड़ता है बस एक सर्टन मार्जिन। ओके, नाउ दैट कुड बी 5%, दैट कुड बी 15%, दैट कुड बी 20%, ये शेयर पे डिपेंड करता है। ओके, बट लेट्स टेक अ सिंपल नंबर ऑफ 10%, एंड अगेन ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। ओके, लेट्स टेक अ नंबर ऑफ 10%। अगर आप फ्यूचर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहते हो और आपको रखना पड़ता है सिर्फ 10% मार्जिन, तो आप 90,000 में 9 लाख रुपए की चीज बाय कर रहे हो। ओके, you're buying something worth 9 lakhs by keeping only 90,000 as margin, and this is why futures has gained a lot of popularity. Okay, क्योंकि आपको बड़ी पोजीशन छोटे पैसे में कम पैसे में लेने मिलती है। There is a typical word for it. Any idea? कम पैसे में बड़ी पोजीशन लेने को क्या कहते हैं? There's a word for this. Very fancy word. Correct. You're right. That is called leverage. Okay. यानी अगर आपके पास लेट्स से मार्जिन जिसे हम कहते हैं, आप कम पैसे रख के ज्यादा पोजीशन ले सकते हो। इसका जो इजाद है, इसका जो इन्वेंशन है, दैट हैज कम फ्रॉम फिजिक्स बेसिकली। यू ऑल नो पुलीज एंड लीवर्स। ओके, कोई भी भारी चीज उठाने के लिए हम लीवर का यूज करते हैं, तो हमारा एफर्ट कम हो जाता है उसमें, राइट? दैट्स हाउ इट वर्क्स इन फाइनेंस। You use small funds to take big positions. That is leverage. Okay. Now, as in not very clear about your question, Shashwat. बताइए फिर से. But we will discuss this as we go along. It is not all rosy. Okay, when it comes to leverage. Leverage को हम कहते हैं double-edged sword. अगर ये आपके फेवर में चलता है, okay, तो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर ये आपके अगेंस्ट जाता है, तो आपके लॉसेस भी उसी तरह से मल्टीप्लाई होते हैं। और ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। ओके, हाँ, सो लॉस होगा तो वो भी बड़ा होगा। शाश्वत, आई थिंक यू कैन चेक ऑन द मार्जिन कैलकुलेटर। गाइस, एनी आइडिया एक लॉट निफ्टी का लेने के लिए कितना मार्जिन रखना पड़ता है एज ऑफ नाउ? चेक करिए। लॉस हुआ तो कर्ज में डूब गया, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि आपको लॉस हुआ तो कर्ज में डूबना पड़े। ओके, उसके लिए भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, वो बहुत ध्यान रख के चलिए। 1,06,000 अप्रोक्सीमेटली। ओके, फेयर इनफ। ओके, एट द करंट प्राइस 1,06,000। निशांत ने इतना प्रिसाइज नंबर दिया है कि आई हैव अ फीलिंग इज गॉन थ्रू द स्पैन कैलकुलेटर एंड आई विल टेक हिज वर्ड फॉर इट। ओके, ग्रेट, थैंक यू। ओके, तो ये था मार्जिन। फ्यूचर्स में कोई भी पोजीशन लेने के लिए आपको एक मार्जिन रखना पड़ता है, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट वन इज सेटलमेंट। व्हाट इज सेटलमेंट? अगर आप फ्यूचर्स बाय करते हो और सेल करते हो, या सेल करके फिर बाय करते हो, तो आपका जो प्रॉफिट होता है दैट गेट्स सेटल्ड ऑन अ T+1 बेसिस। ओके, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट से आपके अकाउंट में अगले दिन क्रेडिट हो जाएगा। सो इट्स अ T+1 सेटलमेंट। स्टॉक मार्केट में कैश में सेटलमेंट का साइकिल क्या है? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस, बट जस्ट इफ समवन डजंट, करेक्ट, इट्स अ T+2 सेटलमेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आपने मंडे को शेयर्स बेचे तो वेडनेसडे तक आपके अकाउंट में पैसे आते हैं, राइट? ग्रेट। एंड एज पर रीसेंट डेवलपमेंट्स, नॉट सो रीसेंट बट स्टिल, फ्यूचर्स होते हैं कैश या फिजिकली सेटल्ड। ओके, इसका मतलब क्या है? अगर आप फ्यूचर्स बाय करते हो और सेल करते हो, तो आपका सेटलमेंट होगा या तो इन कैश, ओके, विच इज इफ यू बाय एंड सेल दीज, ओके, तो सेटल आपका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो कैश एक्सचेंज करके सेटल हो जाएगा। ओके, और इट विल बी फिजिकली सेटल्ड, मतलब उतने शेयर्स आपको एक्चुअली एक्सचेंज करने पड़ेंगे। ओके, and this is something new, so be careful. Okay, and this kicks in the expiry week. We'll discuss this also in detail, I think, in the next session, okay, when we discuss settlements. But remember this, you have to be very careful about physical settlements. Okay, I will come to the portal also, Sagar, fair enough, I'll come to the portal also in some time. Okay, in fact, now that you've mentioned, why not go to it straight away, shall we?
Chalo, I am logging into the portal just to help you understand what does it look like on the portal, okay, and how can you trade or transact, okay, in futures. Okay, yeah, we will elaborate on settlements also. Okay, I am now sharing my screen. Let me know if you guys can see it, okay? Is this visible now, the Upstocks portal? Okay, great. That's a good question. Active derivatives. How can I activate derivatives? Okay, fair enough. There is a chance कि आपके account में derivatives activated नहीं होगा. So if that's the case, then you will need to go to activate derivatives. You'll have to place a request to get it activated. Why is there a price difference between cash market and future market of the same stock? Okay. Any guesses why? पहले तो देखते हैं ये है भी कि नहीं. We've not even got to that yet. Okay. Let's start with, let's take a random one. Okay. Polycab. Okay. Now, if you guys can see my screen, you will be able to see this. Can you see this? These three futures contracts? Yeah. Okay, great. So Polycab in cash market, and again, standard disclaimer, this is for educational purposes only. This is just the first stock that was there on my list, nothing else. Okay. Zoom kar liya. Acha. Is everyone else able to see it clearly? या थोड़ा font size बड़ा करूं? Oh, sorry, कट हो रहा है. Okay, fair enough. So it's getting cut if I increase the font size. So I'm just going to keep it at this. आप अपने phone पे जरा सा zoom करके देख लीजिए. Great, thank you. हाँ जी. So as you can see, okay, as you can see, Polycab is trading at 2480 in the cash market. Okay, जैसा हमने डिस्कस किया, इसके 3 महीने के फ्यूचर्स अवेलेबल हैं, Jan, Feb and March. Okay, now as someone's already seeing this or asking this, Polycab का कैश प्राइस है 2480. ओके, जैन फ्यूचर्स का प्राइस है 2488. फेब फ्यूचर्स का प्राइस है 2500. I won't even come to March right now. Let's just stick to Jan and Feb. We can, just for understanding purpose, let's stick to Jan and Feb. Okay, फेब का जो फ्यूचर्स है उसका प्राइस जरा सा हाई है, करेक्ट? व्हाई इज दिस? क्यों ऐसा है कि उसका प्राइस जरा सा ज्यादा है? Buying or selling pressure. Okay, fair enough. Anyone else? Any other guesses? Bullish. Okay. Okay. Any other guesses? क्यों फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा है? Expectation, time, view, premium, bullish, time value, financial results. It has more time. Okay. बढ़ सकता है, फेयर इनफ. ओके, अपर सर्किट लगेगा. ओके, फ्यूचर्स में अपर सर्किट नहीं होता, मतलब एक टेम्पररी फ्रीज होता है. बट जो कंपनी फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, उसमें कोई सर्किट नहीं होता. ओके, इन द सेंस एज आई सेड, एक टेम्पररी प्राइस फ्रीज होता है और वो डेली इंट्राडे बेसिस पे भी रिवाइज हो जाता है. ओके, interest charge, good point. Interest calculated, very good point. Okay, now let's understand this. Okay, let's understand this. Why not come to Nifty that we've been discussing?
So Nifty is trading at 18,212 in cash. Okay, but in futures it is trading 18,227, marginally higher. Okay, logic same hai. Let's understand why this is happening. Okay, now as we've discussed before, अगर आप निफ्टी कैश में बाय कर रहे होते, assuming it's a share, assuming you were buying 50 shares, तो आप कितना पैसा रखते? How much money would you have to keep for buying Nifty in cash? 50 shares, 9 lakhs, correct? कितना मार्जिन रख के आप एक फ्यूचर्स बाय कर रहे हो सेम 50 शेयर्स? अबाउट 90,000 और a lakh. ओके, तो आपको करीब 8 lakhs का लेवरेज मिल रहा है, आपको 8 lakhs का एडवांटेज मिल रहा है. ओके, ये एडवांटेज कहां से आ रहा है? हु इज गिविंग यू दिस एडवांटेज? The exchange. Okay, fair enough. Exchange, brokers, no, not brokers, it's the exchange. Fair enough. So the exchange is giving you this facility. In a way, the system is giving you this facility. ठीक है? That's how futures are designed. तो एक बात बताओ, अगर आप okay 8 लाख रुपए सिस्टम से बोरो कर रहे हो, let's just call this a system or a universe. Okay, अगर आप 8 lakhs सिस्टम से बोरो कर रहे हो, okay, to buy something which is worth 9 lakhs by paying only 1 lakh. Okay, तो पैसे बोरो करने के लिए आपको क्या चार्ज देना पड़ता है? पैसे बोरो करने के लिए what do you have to pay? You have to pay interest. Exactly, correct. Now that is exactly what is happening. Okay, you're in a way paying interest to borrow these additional 8 lakhs. Okay, and that is nothing but factored in the price of the futures. Okay, and that is why futures ka price is higher than the cash ka price. Okay, is this clear? Is this making sense? Somebody was asking me, I think it was more on a host and panelist wala chat, ki why is the price higher? Correct. I hope you have got your answer and everyone else. Okay, sure. I'll repeat. देखो, अगर आप 50 शेयर्स निफ्टी के कैश में बाय कर रहे होते, करेक्ट, तो आप कितना पैसा पे करते? 9 lakhs. ओके, फ्यूचर्स आपको एक फैसिलिटी दे रहा है. ओके, फ्यूचर्स आपको एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप 9 लाख रुपए मत दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए और ये फ्यूचर बाय कर लीजिए, ये 50 शेयर्स बाय कर लीजिए. ओके, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लेवरेज आपको मिल रहा है, इसका कोई तो कॉस्ट होगा ना. लेट मी एक्सप्लेन दिस विद अ स्लाइटली डिफरेंट एग्जांपल. ओके, यू वांट टू गो आउट एंड बाय अ हाउस. आपको घर बाय करना है, ठीक है, जिसकी कीमत है 1 crore. यू वांट टू बाय अ हाउस वर्थ 1 crore. ओके, यू हैव 10 crores with you. Okay, additional 90 crores आप कहां से लाओगे? Where will you get the additional 90 lakhs from? 90 crores, wow. Where will you get the additional 90 lakhs from? House is worth 1 crore. आपके पास 10 लाख है, 90 लाख और चाहिए. You will get a loan. अब ये लोन लेने के लिए, ओके, बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा? लोन देने के लिए what will the bank charge? It will charge interest. Correct? बस एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अप्लाई हो रहा है. एंड फॉर अ स्मॉलर टाइम ड्यूरेशन, अ लोन, अ हाउस लोन विल टिपिकली बी ऑफ 10 years, 15 years, 20 years. यहां पे हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात कर रहे हैं. करेक्ट. हाँ, ये इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है? शाश्वत, ये इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो एज अ ट्रेडर. जब आप निफ्टी का फ्यूचर, ओके, 18,222 में बाय करते हो, when you buy this future for 18,227, जब निफ्टी चल रहा है 18,212, तो ये जो एडिशनल 10-15 रुपए का डिफरेंस है ना, यही वो इंटरेस्ट है जो आप पे कर रहे हो. वरना आप ज्यादा पैसे देके फ्यूचर्स क्यों बाय करोगे?
करेक्ट. Why will you buy the same thing by paying slightly higher amount? You will pay the exact same price जो कैश में चल रहा है. करेक्ट. This is the difference. This is the reason why the prices are higher. And there is a technical word for this. जो ये difference है between the futures price and the cash price, इसको क्या कहते हैं? What is the difference between the futures price and the cash price called? Thank you. Mahesh, I'll come to that question. I'll come to that question, guys. Yeah. Good. It's also called basis. Very good point. It is known as premium. More commonly, it is known as premium. Futures का प्राइस जब कैश प्राइस से हायर होता है उसे हम कहते हैं प्रीमियम. ये शेयर प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है. ओके. ये शेयर प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है. ओके. एक वो रीजन है विच इज मार्जिन. ओके. एक रीजन और है व्हाई द प्राइस ऑफ futures is generally higher than cash. Any guesses why? Predominant reason ये है, okay, which is interest. Okay. Any guesses ki why is the price higher? Any other reason can you think of? Time. Okay, good point. Good point. Let me also touch upon this. ठीक है. देखो, interest is for a certain period. बराबर. इंटरेस्ट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड. अगर महीने के स्टार्ट में, ठीक है, आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये फ्यूचर बाय करना है, तो ये प्रीमियम या इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा. जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी ये इंटरेस्ट कम होता जाएगा. ओके. सो द प्रीमियम कीप्स ऑन रिड्यूसिंग एज द एक्सपायरी अप्रोचेस. ओके. दो दैट्स नॉट द राइट आंसर एंटायरली. रिस्क मार्केट को अल्टीमेट ऊपर जाना है. ओके. हाउ ऑप्टिमिस्टिक संदीप. Because we and the market both are tuned for growth. Same answer, Mahesh. Again, extremely optimistic. And why shouldn't we be? Time decay, open interest, no. Okay. So, let me answer it this way. आज कैश मार्केट में, ठीक है, वर्सेस फ्यूचर्स मार्केट में कितना ट्रेडिंग होता है? एनी आइडिया? मतलब what percentage of total trading is futures versus cash? Any idea? No? Okay, fair enough. Now, if I am not mistaken, and this may not be an entirely correct statistic, लेकिन futures में जो trading है, correct, it is multiple times. मतलब it could be 2, 3, maybe even 5 times than what is happening in cash. Okay. The point being, cash market versus future market भी एक independent sort of market बन गया है. Independent may not be the exact word क्योंकि फ्यूचर लिंक्ड है, बट द पॉइंट इज फ्यूचर्स मार्केट में भी बहुत सारी ट्रेडिंग होती है. ओके. तो जो फ्यूचर्स में डिमांड और सप्लाई है वो बढ़ के दिखता है बिकॉज लेवरेज है. तो अगर बहुत ज्यादा डिमांड है तो द प्रीमियम इटसेल्फ विल इंक्रीज. अगर डिमांड कम है सो द प्रीमियम विल श्रिंक. ओके. सो फ्यूचर्स बीइंग अ मार्केट इन इटसेल्फ अफेक्ट्स द प्रीमियम. प्रीमियम ज्यादा है या प्रीमियम कम है, क्योंकि ये गैप कांस्टेंट नहीं रहेगा. राइट. ये गैप चेंज होते रहेगा. ओके. नाउ टू एड्रेस अ क्वेश्चन दैट समवन्स बीन आस्किंग मी, मैं आप लोगों के पास ये थ्रो करता हूं. ठीक है. अभी हमने देखा कि फ्यूचर्स का प्राइस कैश के प्राइस से ज्यादा है. करेक्ट. नाउ ओनली यस और नो क्वेश्चंस. ओके. ओनली यस और नो क्वेश्चन. अभी यस या नो टाइप करिए. ओके. क्या फ्यूचर का प्राइस कैश के प्राइस से कम हो सकता है? यस या नो? यस नो, यस नो, यस यस, यस नो, यस 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 यस. ओके. यस, नो, नो नो. ओके. यस समटाइम्स. ओके. ओके. Yes, no. Fair enough. Okay. So we have a fair mix. If I have to check or if I have to take a rough guess, it will probably be a 70-30, 70 towards yes. Okay. Now here's my point. Okay. Listen to this question very carefully. हम कह रहे हैं कि फ्यूचर का प्राइस ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप लेवरेज ले रहे हो और आप उस लेवरेज पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो. करेक्ट. करेक्ट विथ मी. ठीक है. सो अगर आप ओके. हाँ. सो विल कम टू दिस. ओके. अगर आप
फ्यूचर्स का ले रहे हो, ओके, पोजीशन, उसमें लेवरेज मिल रहा है और आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, करेक्ट, देन हाउ कैन द फ्यूचर्स प्राइस बी लोअर देन द कैश मार्केट? ओके, सो नाउ आपने यस या नो आंसर दिया है. नाउ आई वांट यू टू गिव अ रीजन फॉर दैट आंसर. सम ऑफ यू ऑलरेडी गिवन दैट कि बिकॉज हम एक इंटरेस्ट कंपोनेंट पे कर रहे हैं, द प्राइस कैन नॉट बी लोअर. आई वांट यू टू गिव मी द रीजन बिहाइंड योर यस और नो नाउ. ओके, क्यों या कैसे फ्यूचर्स का प्राइस कैश से कम हो सकता है या नहीं हो सकता? डिविडेंड, गुड पॉइंट. और कोई रीजन? Because market can fall, so now interest will be on new market value. अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क नहीं डाला होता सागर, then your answer was bang on. At times I've seen futures trading at a discount when technical is indicating downfall, hence the demand. Very good points. I love this. You guys have come up with brilliant answers, and here I am assuming कि आपने ये पहले पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, ट्रेड नहीं किया है, और आप बस लॉजिकली सोच के आंसर दे रहे हो, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. ओके, लेट्स टेक अ लाइव एग्जांपल. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये मिस कर दिया हो. यू रिमेंबर पॉलीकैब, वी जस्ट डिस्कस्ड अ व्हाइल बैक. ओके, हाँ, मे बी दैट ऑल्सो. ओके, सी, पॉलीकैब हमने देखा, जैन का जो प्राइस है वो कैश के ऊपर है, फेब का प्राइस उसके भी ऊपर है, लेकिन मार्च का जो प्राइस है, मार्च के फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो कैश प्राइस से नीचे है. हाउ इज दैट पॉसिबल, राइट? आई एम मिक्सिंग इट अप एज मच एज आई कैन, दिनाकरन जी. या, सो हाउ इज इट दैट द मार्च प्राइस इज lesser than the cash price even though Jan and Feb are higher? क्योंकि if you talk about March, you're taking the same leverage for a longer time. Okay, इसीलिए Jan का प्राइस हायर है लेकिन Feb का प्राइस उससे भी ज्यादा हायर है. ओके, एंड दैट लॉजिक से मार्च का प्राइस Feb के प्राइस से भी ऊपर होना चाहिए था. रिस्क फैक्टर, डिमांड इज लेस. ओके, ओके, एनी अदर पॉइंट्स? Risk factor, okay, not entirely there. Demand is less, I can understand. Panic, okay. अच्छा, तो ये पैनिक मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में ही क्यों आएगा? Why wouldn't it come? Because स्टॉक तो सेम है ना. Why won't the panic set in for Feb and Jan also? Liquidity is a fantastic point actually. Year ending? No. Okay, largely I will have to go with liquidity in this one. ठीक है, लिक्विडिटी नहीं होगी इसलिए ये प्राइस नीचे होगा. ओके, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके, नाउ लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली, ओके, स्टे विथ मी गाइस, लेट्स हाइपोथेटिकली अज्यूम कि दिस मार्च प्राइस, ओके, थैंक यू हिना, लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली अज्यूम दैट दिस मार्च के फ्यूचर्स का प्राइस इज द फेब का प्राइस. ओके, 2480 is the cash market price. ओके, लेकिन जैन में ये ट्रेड कर रहा है at 2478, which is lesser than the cash price. Now, the reason for that is, and some of you have already answered that, आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया है. You know what the answer is? The answer is demand and supply. ओके, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि futures has a lot of trading and transactions happening in it, in its own as a market. बराबर? अब अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है, करेक्ट, कि आने वाले कुछ टाइम में द स्टॉक इज गोइंग टू गो डाउन, ओके, देन व्हाट विल दे डू? इफ यू फील दैट द स्टॉक इज गोइंग टू गो डाउन, व्हाट विल यू डू? यू विल शॉर्ट और यू विल सेल, करेक्ट. नाउ इमेजिन करिए द एंटायर मार्केट इज सेलिंग. ओके, the entire market is selling the share. Okay, what will happen to the price? The price will obviously fall. Correct. And when the price of futures is less than the cash price, it's called a, when the price of futures, जब futures का प्राइस कैश से नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं, what do we call that?
कुछ लोगों ने ऑलरेडी आंसर डाला था, आई नो यू नो, यस एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट। ओके, अगर फ्यूचर्स का प्राइस ज्यादा है दैट्स अ प्रीमियम, अगर फ्यूचर्स का प्राइस कम है सो दैट्स कॉल्ड अ डिस्काउंट। कैन वी टेक मार्च future and sell in February? Yes, you can. However, that will actually not be very fruitful. मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको. It may not be fruitful. Or maybe we can take it up in the next session when we discuss trading in futures in detail. Yeah, lovely. That's called a discount. अब प्रीमियम और डिस्काउंट समझ गए आप लोग? You've understood premium and discount? Yeah, yeah. Okay. Futures की एक्सपायरी होती है ना लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, अजय जी? Okay, great. Excellent. Now that you've understood premium and discount, I have a question for you. Okay. Premium में तो हम समझ गए, there is an interest component, the price is higher. Okay. I have a question for you. Take your time, think and answer. सोच के आंसर दीजिए. अगर एक स्टॉक डिस्काउंट में चल रहा है, okay, अगर एक स्टॉक डिस्काउंट में चल रहा है, the price of that futures is lesser than the cash price. Okay. Does that not have the interest component that we spoke about? इंटरेस्ट कहां गया? प्राइस कैश के नीचे चल रहा है तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट की जो हम बात कर रहे हैं फॉर दैट लेवरेज, वो कहां गया? ओके ओके, आई विल रिपीट. देखो, कैश में कोई शेयर 100 रुपए है, फ्यूचर्स 101 रुपए है, तो वी नो दैट 1 रुपी इज द इंटरेस्ट दैट यू आर पेइंग द प्रीमियम. अगर ये प्राइस 99 है तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट कहां गया? वेयर इज द इंटरेस्ट कंपोनेंट इफ द प्राइस इज 99 and the stock price is at 100? No, because we are creating demand. No interest, we're creating demand. Okay, fair enough. It does not have, due to less demand, discount margin will be more, interest is negative, time value. Okay, sure. Okay, fair enough. Let's understand it in a slightly a different way. Okay, if the price is 100, okay, for cash, and the share and the futures is trading at 101, 100 रुपए का कैश में प्राइस है और 101 है फ्यूचर्स का प्राइस. ओके, सो वी नो कि 1 रुपया जो है वो हम प्रीमियम जो है इंटरेस्ट करके दे रहे हैं. ठीक है. इफ द कैश प्राइस इज 100 और शेयर और फ्यूचर्स का प्राइस है 99, करेक्ट, आर वी स्टिल टेकिंग द लेवरेज? फ्यूचर्स में जब हम पोजीशन ले रहे हैं, क्या हम अभी भी लेवरेज ले रहे हैं? Yes, correct. Is it the same time frame? Let's say a month. If you're taking the position at the start of the month, is it still there? The time frame is also there, correct? So leverage ले रहे हैं, time frame same है, तो interest होना चाहिए ना? So that interest component should be there, and where is it? It's a part of that 99 rupees, which means, okay, which means effectively the futures price is 98. Thank you, Nishant. The futures price is 98. It is because of that interest component, okay, that the price is 99. Otherwise, अगर हम purely futures market की बात करते on demand and supply, the price could have been 98. So that interest component is still there in the futures contract. Understood? Yes, no, can't say, maybe. Okay, sure, I'll explain again. Okay, maybe. Fair enough. Look, some of these things are very interesting, okay, but it may not just come to you very easily. हो सकता है थोड़ा time लगे, and the best thing is just to go out and trade or apply these in the market. Okay, I have always seen कि जब आप इसको apply करते हैं तो आपकी learning multiply होती है, ठीक है, better होती है. So what I'm saying is, अगर futures हाँ, और हम इसीलिए और सेशन लेते रहेंगे, करेक्ट. सो अगर फ्यूचर्स का प्राइस 101 है और कैश में शेयर का प्राइस 100 है, ओके, तो 1 रुपए का इंटरेस्ट कंपोनेंट है, प्रीमियम कंपोनेंट है, वी अंडरस्टैंड. लेकिन कैश में प्राइस 100 है और फ्यूचर्स में प्राइस 99 है. ये क्यों है? व्हाई विल द प्राइस बी लेस? बिकॉज द मार्केट इज थिंकिंग दैट यू नो मे बी देयर इज अ नेगेटिव न्यूज इन द स्टॉक, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सेलिंग दिस स्टॉक. ओके, सब सेल कर रहे हैं, आप, मैं, मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट सेल कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई द प्राइस गोस डाउन फ्रॉम 101
to 99. Okay, now because आप leverage ले रहे हो, okay, you're using extra funds so to speak. एक महीना अभी भी बाकी है, वो ₹1 का इंटरेस्ट कंपोनेंट अभी भी है, ओके, लेकिन वो प्राइस में इस तरह से अलग से नहीं दिख रहा है. सो इफेक्टिवली द प्राइस इज 98, 99 हो गया विद दैट ₹1 इंटरेस्ट कंपोनेंट. ओके, so you're still paying interest, it's just that it's on 98 and the price is 99. Now Prince, you're right, अचानक मार्च में ही क्यों? If my reading or understanding of this is correct, it is largely because of liquidity. ठीक है, हो सकता है. हाँ, okay, let me explain with the help of this example itself. ये prices ध्यान रखिए, 2488, 2500 and suddenly 2478. So इसमें there is a good chance कि डिमांड सप्लाई बायर सेलर के प्राइस में डिफरेंस होगा. ओके, अब हम वो चेक कर रहे हैं. ओके ओके, देयर यू गो. यहां पे हमें मार्केट डेप्थ नहीं दिख रहा है बिकॉज द मार्केट इज शट राइट नाउ. ओके, लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं. जस्ट हैव अ लुक एट द प्राइस गैप, ओके, बिटवीन द आस्क और द सेलिंग क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस 2511, 2524, 2526. ओके, लेट्स सी क्या ये गैप इतनी ही बड़ी है फॉर जैन फ्यूचर्स जो करंट मंथ के फ्यूचर्स हैं. ओके, here you go. Okay, look at this, look at this, look at this, look at this, look at this. The gap for करंट मंथ विच इज जनवरी, ओके, उसके अगर आप प्राइसेस में गैप देखोगे तो कितनी कम है, 2491.15, 2494.20. वहां पे सीधे ही 10-12 रुपए का गैप था. दिस इज लिक्विडिटी, करेक्ट. तो हो सकता है किसी ने मे बी थोड़ी मार्जिनली बड़ी क्वांटिटी जोर से सेल कर दी हो तो प्राइस नीचे चला गया हो, क्योंकि बायर और सेलर के प्राइस में भी गैप होगा. एज एन एक्सरसाइज यू कैन डू दिस. ओके, टुमारो just have a look at the price gap between the January contracts of Polycab futures and the March contracts of Polycab futures, and you will get your answer. Correct? Okay, any comments that are missing? Sir, maybe in Feb month future price of March will increase. Possible, लेकिन liquidity भी होती है. Correct? अभी हमें दिख रहा है कि liquidity कम है इसमें. Okay, निफ्टी का भी देख सकते हैं. जस्ट अ मिनट, सपोज द स्टॉक प्राइस फॉल फ्रॉम 100 to 98 and I bought Jan future at 101, sold at 101, so I'm in profit or loss. If you bought it at 101 and sold it at 101, so it's a no profit no loss, right Sandeep? Okay, so Sagar, I am assuming when you ask, okay, I am assuming that when you ask कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसे कैसे बनाते हैं, सो आई एम अज्यूमिंग आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो. ओके, इट्स द सेम एज कैश. इट्स प्राइस वर्सेस प्राइस. अगर आपने 100 रुपए में बाय किया और 100 रुपए में सेल किया, सो नो प्रॉफिट नो लॉस. अगर आपने 100 में बाय करके 101 में सेल किया तो प्रॉफिट, 100 में बाय करके 99 में सेल किया तो लॉस. सो सागर, संदीप, द इंटरेस्ट इज देयर. You are not directly concerned with the interest right now. For your profit and loss, you are concerned with the buying price and the selling price. Ranjit, I mean, they are so negligible per se, correct? Isliye I'm not even bringing them into calculation. It's just about buying price and selling price. But you can deduct the brokerage and the other charges from that too for an exact, net profit. Okay. Can you suggest virtual platform where we can? Not sure actually. Really not sure. Not sure. Where you can paper trading कर सकते हो, Excel में, you can track your trades. Maybe that's possible, right? Okay. Okay, fair enough. Okay. All right. So where were we? We've just covered the futures, premium and discount. Okay, we've covered margins. All right, let's have a look with Nifty. Right, so Nifty is a case in point about what we were discussing. ठीक है,
Jan futures is higher than cash. Feb futures price is higher than the Jan futures price, and March futures price is higher than the Feb futures price as well. Same logic. The longer the time duration, okay, the longer the time duration, the more interest, okay, you have to pay, and that is why the farther the contract expiry, the higher the premium you'll see, correct? So, and Nifty, Bank Nifty, these indices futures typically have good liquidity, correct? And that is why that aberration is not visible. Okay, they have enough liquidity, so the price discovery is fairly okay. What I mean is, अल्टीमेटली आप प्रीमियम जो है वो एज एन इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बराबर? तो अगर आप 1 महीने के लिए लेते हो तो x इंटरेस्ट होगा, अगर आप 2 महीने के लिए ले रहे हो तो x प्लस, एंड अगर आप 3 महीने के लिए ले रहे हो तो x प्लस प्लस का इंटरेस्ट होगा, करेक्ट? एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू कैन सी इन द निफ्टी फ्यूचर्स प्राइस. निफ्टी के जैन फ्यूचर्स का जो प्राइस है ये इज स्लाइटली हायर देन द कैश. फेब का इज हायर देन द जैन का प्राइस, एंड मार्च का प्राइस इज हायर देन द फेब के फ्यूचर्स का प्राइस ऑल्सो. ओके, सो बिकॉज यू आर बाइंग फॉर अ मोर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन. इसलिए एज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो मार्केट में देखा गया है, ओके, ज्यादातर ट्रेडिंग, ज्यादा से ज्यादातर ट्रेडिंग करंट मंथ के फ्यूचर्स में होती है. अगर आप जैन में है तो जैन मंथ का जो फ्यूचर्स चल रहा है उसमें, ओके, एंड वहां पे आपको सबसे ज्यादा लिक्विडिटी भी मिलती है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी वहीं होती है. तो अनलेस यू हैव अ वेरी स्पेसिफिक रीजन दूर के महीने का बाय करने के लिए, try to trade in current month positions, current month futures. Okay, futures and options are similar in some degree, but they are world apart in many ways. एक सिंपल तरीके में समझाऊं तो फ्यूचर्स एक्सप्लेन करने के लिए हमें शायद 1 या 2 सेशन लगेंगे, ऑप्शंस एंड टू एंड एक्सप्लेन करने के लिए हमें शायद 7 या 8 सेशंस लगेंगे. सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेलिंग दैट इज देयर इन ऑप्शंस. बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शंस में देखने, सीखने, समझने के लिए हैं. Which one is good for trading, equity, option or future? Okay, that's a tricky question and I'll tell you why. हर चीज का एक रीजन होता है, हर चीज का एक पर्पस होता है. ओके, जब आप समझ जाओगे कि इक्विटी में ट्रेडिंग क्यों और कैसे करते हैं, ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों और कैसे करते हैं, तब आप आइडियली डिसाइड कर सकते हैं कि किस में ट्रेड करना बेटर है. हर इंस्ट्रूमेंट का एक पर्पस है. अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इक्विटी बेटर है या एफडी, तो आप क्या कहोगे? करेक्ट. अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो इक्विटी, अगर आप सेफ्टी चाहते हो तो एफडी, करेक्ट? एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग हैज अ पर्पस, करेक्ट? एंड दैट इज व्हाई once you understand इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन किस किस रीजन से यूज होते हैं, क्या उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे. ओके, ग्रेट. चलिए, we are 5 minutes away from the session end time today. Rather than starting a major topic, okay, which we'll start from the next one, how about I take up any questions or queries that you may have? Any question? First, my question, okay, sure. Minimum investment is I think about Nifty, I think has one of the least margins required, so I think about 1 lakh is what you need. Okay, but अगली बार हम डिस्कस करेंगे M2M, तब आप you'll realize that you need a little more than 1 lakh. Okay, in November I tried January contract at market price, but I didn't get. Why? November में you tried to buy January, but market price पे नहीं आया. क्या अलग प्राइस पे आया? That could be because of the liquidity issue जो हमने पॉलीकैब में देखा. Okay, Prasad, can you share your question again about settlement? We will do that in detail in the next session, as I said. ये पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो यार, बड़े ट्रिकी हो जाते हैं. डिफरेंस बिटवीन निफ्टी फ्यूचर्स एंड बीज इज मोर लाइक इट्स एक्चुअली म्यूचुअल फंड. आप कैश में बाय करके रख सकते हो. फ्यूचर्स इज अ लेवरेज्ड प्रोडक्ट दैट यू हैव टू कीप रोलिंग ओवर एवरी मंथ अगर आप बाय करते हो. विश्वजीत, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, करेक्ट? Raj, I tried to buy TCS option on expiry day, but I was unable. I'll have to see I mean, कि trading के लिए वो available था, नहीं था, क्या, a lot of details in that, Raj. So not sure. I mean, without details, it'll be difficult to give a precise answer to that question. Yes, Kabir Singh, आपको recording मिल जाएगा. That will be available.
श्योर मिल जाएगा. ओके ग्रेट. एनी अदर क्वेश्चंस? फ्यूचर ट्रेड कैसे और कितने करें कस्टमर की ब्रोकरेज 2000 जनरेट हो तो? अब वो तो आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर लीजिए और रादर पर ऑर्डर. करेक्ट. पर ऑर्डर कितना ब्रोकरेज लगता है एंड दैट इनटू नंबर ऑफ ट्रेड्स. ओके. Not related to future, but in equity, I'm not able to buy with stop loss and target on up stocks. Acha. Okay. We'll have to see, Sagar. How do you get into, what order are you placing exactly? So maybe you can have a word with your RM, share some screenshots and raise a ticket. तो वो आपको बताएंगे. Next session शुभम होगा same next Wednesday 5 o'clock. Unless there's a change, that will intimate. But yeah, options we will start very soon. I think the week after the next one we'll start with options again. जी हाँ, recordings मिल जाएंगी. Great. Okay, thank you everyone. This was a lovely session and we hope to continue this. Okay, we will continue on futures, trading, settlements, expiry, margin, M2M, a lot of things, correct, in the next session, and then after that we'll begin with options. Correct. So all the very best. कल expiry है. अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो stay safe. Okay, trade carefully and I will see you in the next session. Take care everyone. Bye bye. See you.